ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमती राधा रानी जन्म महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री मदन मोहन मोहिनी की। हरे कृष्णा। I request all of you to come in the front. Thank you so much for coming today for Radha Ashtami. Sunday is Radha Ashtami. So today we will see some mellows from Srimati Radha Rani's pastimes. I will request Prabhu to play one video first, and you want to, Mataji will teach Hanuman Chalisa. If the children want, they can go inside and they can learn. Today we have Mataji, so children can go inside and up to you. You are in the middle, neither children nor adults, so you can decide. दूसरा वाला पहले लगाइए। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। The eternal concert of love. Srimati Radharani is the eternal concert of Lord Krishna. 5,000 years ago, when Lord Krishna came to this planet to perform his pastimes, Srimati Radharani also appeared. This special day is known as Radhashtami. Early one morning, Vrishabhanu Maharaj was taking his morning bath in the holy Yamuna river. Just then, a beautiful baby girl floated by, lying on a radiant and fully blossomed lotus. With intense glee, he embraced the divine infant and carried her off to his queen Kirtida Devi. When Kirtida saw her husband with this little girl, she ran over and showered little Radha with unrelenting affection. But the king and the queen quickly noticed that the baby's eyes did not open. This naturally broke their hearts, and they prayed that God might bless her with the power of sight. Lord Krishna's mother Yashoda heard that her best friend Kirtida had a baby, so she came to visit along with her husband and her son. Baby Krishna crawled up to the cradle and pulled himself up and looked in. At that moment, Srimati Radharani's eyes fluttered and opened wide and blossomed like lotuses. It seems that she did not want to see anything of this world except the form of Lord Krishna. Everyone was delighted. Krishna too was overwhelmed with love
as he saw before him his eternal consort in the guise of a baby girl. Srimati Radharani is the mother of the universe, the spiritual mother of all souls. That is why our sacred mantra is the holy names. It is the holy names in the vocative. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare means Radhe. It is a plaintive, desperate cry for the mother, Radhe. Please wake us up from the nightmare of mortal life. Remind us of the Father we have forgotten and take us home, back to Godhead. In the Krishna consciousness movement, devotees carefully worship Srimati Radharani as the bestower of devotional service to Lord Krishna by attentively chanting her name in the Mahamantra, by worshipping her deity form, and by following the instructions of the most merciful Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the combined form of Radha and Krishna. Therefore, Radha is Paramadevata, the supreme goddesses, and she is worshipable for everyone. She is the protector of all, and she is the mother of the entire universe. It is only on this auspicious day of Radhashtami, the lotus feet of Srimati Radharani is uncovered. So devotees can take opportunity to have darshan of the lotus feet of Srimati Radharani. Happy Radhashtami to all of you. Thank you. For more videos, you can subscribe to our YouTube channel. Hare Krishna. श्रीमती राधा रानी महामहोत्सव की। आप लोग आगे आ जाइए इधर, if anybody comes later. प्रभु जी, I don't think you'll be able to see the screen. आप लोग प्लीज ऐसे इधर आ जाइए जिससे स्क्रीन देख सके. It will be good, so we can chant together. So everybody thinks Krishna is the supreme personality of Godhead. But there is somebody who controls the supreme personality of Godhead. That is Radharani ki. So if he is Radha Madan Mohan, he is Madan Mohan Mohini. So actually speaking, like what is happening, parampara continues. Even the ansh of Krishna, all of us, we follow the same principle. वहाँ पे भी घर में उनकी चलती है, जैसे यहाँ पे it's the same thing. So if you go to Vrindavan, today we'll discuss about Radharani, what the scriptures are saying. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Garg Samhita, variety of things we will see. So if you go to Vrindavan, you will not find devotees chanting Krishna that much. Even a rickshaw wala, he will say, हाँ भाई बिहारी जाएगा राधे राधे. Because उनको पता है राधा रानी makes a petition कि ये बंदे को आप please accept him or her, then he cannot say no. This is the beauty of worshipping Radharani. If you go to Vrindavan, they will say, Radhe Radhe bol, गठरी खोल. भैया दिखाओ क्या रखा है इसमें. Gop Gwal will say like that. So Radha Ashtami, first of all, in Shukla Paksh Bhadramas in Barsana, which is also called as Raval, Radha Rani appeared. We just saw that. At whose house? Vrishabhanu and Kirtidas house. Chaitanya Charitamrita tells us, let us discuss a little bit who is Srimati Radharani. Please repeat. Yes, Prabhu, very nice. क्या बात है, जबरदस्त. घर का भूषण अगर ऐसे नहीं करेगा तो कौन करेगा? Please repeat. आनंदाम से आह्लादिनी, सदम से संदिनी,
सच्चिदांशे संवित यारे ज्ञान करीमानी. So Chaitanya Charitamrita tells us that in principle there are three types of potencies, energies. Of course, there is external, internal and marginal. But within internal also there are three energies. One is Alhadini Shakti. Alhadini means the pleasure potency. We will see later on in the verses, it will come that Krishna himself actually became Shrimati Radharani to enjoy the bliss of his own self in a blissful manner. How does he taste his own bliss? So he expanded actually. So one is Alhadini Shakti, which is the pleasure potency. See, Krishna is three things, right? Sat, Chit and Anand. So, Sat Amse, that is the eternal part of it. And Chit Amshe, that is knowledge. Sat, Chit, Anand. So, Prabhu, you will read the translation. The three portions of the spiritual potency are called Alhadini, the bliss portion Anand, Sandhini, the eternity portion Sat, eternal, and Samvit, the knowledge portion Chit. We accept knowledge of these as full knowledge of the Supreme Personality of Godhead. So Krishna has three spiritual potencies: Alhadini Shakti, Sandhini Shakti, and the Samvit Shakti. Alhadini Shakti is the bliss portion, Anand portion. Sandhini is the eternal. So Sat, Anand, and Chit means full of knowledge, Samvit. Three combined is full knowledge of Krishna. जैसे वो है ना, क्या है? वदंती तत्त्वविदात् तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. हरि बोल. Very nice. So Krishna is sum of all three. Similarly here, the spiritual potency, three potencies, Krishna is sum of all three. Please go to the next one, Prabhu. Maybe you can see here also. Yeah. Okay. So now, simply put, the shloka with the verse which we saw, there are three main energies. External, which is external energy? No, external. Very soon, Navaratras are coming. Yes, the external energy, the marketing department of Lord Krishna. Oh, Devi Eshi Gunmaya Maya Durataya. Oh, मुझे लगता है मैं देख लूंगा. माया कह रही है तुम क्या देखो, तुम्हारे जैसे कितने धूल चटा दिए. Nobody actually can surpass external energy without her own mercy. That is why Mother Goddess Durga is worshipped. Please allow me to pass by the fort, the Durga, and therefore worship of Durga. Durga is energy which cannot be separated from Krishna. So we have external energy, चमक धमक बाहर की जो दिखाई दे रही है. नेक्स्ट इज मार्जिनल एनर्जी. वो कौन है जी? हम सब हैं, जीव. हम मार्जिन पे खड़े हुए हैं, तटस्थ. इधर जाना चाहे तो स्पिरिचुअल जाए, इधर जाना चाहे तो माया में. इधर का अलग आनंद है, उधर का अलग आनंद है. इधर का आनंद है कि थक के फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तब फिर वापस मार्जिनल पे आना, फिर वापस इंटरनल पे जाना. उधर निकल गए तो लंबा रास्ता है. तो पहले वो लगेगा कि बहुत आनंद आ रहा है. कोई भी ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे बैठा हुआ जिसको भोगने के बाद में विशुद्ध आनंद लंबे समय तक रहा हो? सेम भोग को हम तरह तरह से नए नए तरीके से, क्या है वो भैया? चर्वितम चर्वना नाम, पुनः पुनः चर्वितम चर्वना नाम. पहले इसको ऐसे रख के खाया, फिर इसको ऐसे रख के खाया, फिर ऐसे रख के खाया, पर मजा आ ही नहीं रहा जब तक छोड़ा नहीं उसको.
तो ये है मार्जिनल। फिर इंटरनल एनर्जीज में जो है 3 एनर्जीज है। पहली अलादिनी, आनंद की शक्ति, दूसरी संवित यानी नॉलेज की, और तीसरी संधिनी। तो राधा रानी कौन है इनमें से जी? अलादिनी। अलादिनी में इंटरेस्टिंगली चित्त और सत भी इंक्लूडेड है, लेकिन उनका खास काम क्या है? प्लेजर पोटेंसी। यस प्रभु। चलिए जी, अब देखें। लेट्स सी द, आई थिंक लेट्स स्ट्रेट अवे सी द, प्रभु विपुल प्रभु, यू विल रीड द ट्रांसलेशन। अरे ऐसे यू विल गेट अ क्रिक इन द नेक। आप फिर घर जाके माता जी को मालिश करनी पड़ेगी अगले 2 हफ्ते जयराम जी की। जोर से। The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord internal pleasure giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him, who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. हाँ, तो पहले कृष्ण जी अकेले थे, then he himself एको बहुश्यामा, then he expanded himself and became Radha and Krishna as separate entities. So Krishna, then Radha Krishna, and then when Chaitanya Mahaprabhu came, he again combined to get the mellow mood of श्रीमती राधा रानी। तो ये जो है भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान स्वयं का आनंद लेने के लिए उन्होंने राधा रानी का रूप लिया। चलिए जी आगे चलिए। हिंदी में कोई पढ़ना चाहेगा? हालांकि राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक हैं। पहले उन्होंने खुद को अलग कर लिया, अब ये दो पारलौकिक पहचान फिर से एकजुट हो गई है। कृष्ण चैतन्य के रूप में मैं उन्हें नमन करता हूँ। यस, सो ये उसी का ट्रांसलेशन था हिंदी में। ओके जी, अब चलिए जी आगे। तो ये तो हो गया राधा रानी, श्रीमती राधा रानी कौन है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं श्रीमद् भागवतम में एक इकलौता वर्ष है जहां पे श्रीमती राधा रानी की चर्चा की गई है। तो बहुत लोगों ने पूछा कि व्यासदेव जी ने और सुखदेव जी ने श्रीमती राधा रानी की चर्चा इतनी बड़ी भागवतम में 18,000 श्लोक, उसमें श्रीमती राधा रानी का सिर्फ एक ही श्लोक क्यों रखा? तो उसका आंसर आचार्य कहते हैं कि अगर उन्होंने एक और बोला होता तो बाकी बोलने लायक बचते ही नहीं, इतना भाव विभोर हो जाते कि वहीं ठहर जाते और कोई कथा होती ही नहीं। और इसके अलावा ये बहुत ही सीक्रेट पास टाइम्स हैं, मुंडेन माउथ, मटेरियल माउथ से इनका वर्णन करना असंभव है। इसलिए चेष्टा यही रहेगी अपनी कि जैसा कहा गया है एज इट इज इसको बोला जाए, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है। आप लोग प्लीज आगे आ जाइए, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज कम इन फ्रंट सो दैट एवरीबडी कैन सिट। ओके, प्लीज रिपीट। सो ये जो एक इकलौता श्लोक है 18,000 में जिसमें श्रीमती राधा रानी का जिक्र आता है 10:30-28, प्लीज रिपीट। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरः यनो विहाय गोविंद प्रीतोयम अन्यद रहः। हाँ, ये देखिए जी, अन्य आराधितो, आराधिता मतलब भगवान की आराधना करना यानी राधा रानी। अन्य आराधितो नूनम, तो भगवान ने क्या किया कि जब गोपियों और राधा रानी के साथ में रास और वृंदावन लीला हो रही थी, तो अन्य आराधितो, एक अन्य गोपी थी जिसका नाम था राधा रानी। भगवान हरि ईश्वर यनो विहाय गोविंद, विहाय का क्या मतलब होता है जी? छोड़ देना।
भगवान कृष्ण ने बाकी सब गोपियों को छोड़ दिया। यनो विहाय गोविंदा, गोविंदा ने बाकी सबको छोड़ दिया। प्रीतो यम अन्यद रहा, और राधा रानी के साथ में एक सेक्लूडेड स्पॉट यानी जहां पे कोई नहीं था वहां उनको लेके गए वो। इसलिए कहा गया कि आपने जरूर ही उनको बहुत ज्यादा प्लीज किया होगा। प्रभु, यू विल रीड द ट्रांसलेशन जोर से। Certainly this particular Gopi Radharani has got Vishwanath Chakravarti Maharaj has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he has so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to the secluded place. Yes, so this is the only verse in Srimad Bhagavatam. अब देखिए जी, ये कई जगह आज ही हम देखेंगे, गर्ग संहिता में है। प्लस इसके अलावा प्रभु अलग अलग पंथ हैं, जैसे आप आजकल सुन रहे होंगे श्री राधा वल्लभ पंथ। उस पंथ में गोपी भाव, सहचरी भाव ही है। उन ग्रंथों में भी उनकी चर्चा की गई है। उसमें पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद में 5 मिनट में ऐसा लगने लगेगा ये तो शायद मुंडेन किसी गर्ल या बॉय की बात हो रही है। बट इट इज नॉट, इट इज लाइक हैविंग गोलोक पास टाइम ऑन दिस मटीरियल अर्थ। इट इज लाइक दैट। बाद में तो प्रभु बोला ना 10 to 10 तो आपको स्टार्टिंग में टच भी नहीं करना है। हाँ, यू हैव टू ग्रेजुअली रीच देयर। और ग्रेजुअली 10th में भी इनका जो है वो तो मतलब, लेकिन गौड़िया, ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय में जो एपिटोम है जो लव का, वो इन्हीं का है। क्योंकि दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय होम? चैतन्य महाप्रभु। एंड चैतन्य महाप्रभु इज हु? He came to exhibit Radha Rani's love for Krishna and combined in 2 into 1. लेकिन वहां पहुंचने के लिए वही है ना, पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, वो भगवान की कृपा चाहिए वो समझने के लिए। लेकिन हम फिर भी यथावत जैसा कहा गया है वैसा ही उसको रिपीट करेंगे, जिससे कि अनअडल्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कैन बी perceived. It cannot be added, no words can be added by mundane people like me. हाँ जी, प्रभुपाद एक राधाष्टमी, ये जगह जगह से लिए है ये, इसमें प्रभुपाद एक राधाष्टमी लेक्चर में बताते हैं वही कि कृष्णा इज एको बहुस्यात्, he is Krishna and then he expanded. So when Krishna wants to enjoy, so the pleasure potency is manifested from his personal body. That personal potency, Aladini Shakti, is Radharani. So our business is what? To follow Radharani's footsteps. And what is Radharani's business? Samsiddhir Haritoshanam. See, please repeat this. Sutji said in this. Ataha Pumbir Dvij Shreshta Varnashrama Vibhagashaha Swanitishthasa Dharmasya Samsiddhir Haritoshanam. Ultimate goal is Samsiddhir. That is highest perfection is what? Hari, Lord Hari. Toshanam. That is, see, every day I am saying too many times, oh, for the pleasure of Lord Krishna, let's do this. But I don't really mean it. Most of the time I am doing for my pleasure. For the pleasure of Lord Krishna means whether I feel personally good or bad, I should still do it. It's a very serious statement. I am doing for Lord's pleasure. मतलब जो उनकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है. That stage is extremely difficult. So that is what Srimati Radharani is doing. Samsiddhir Haritoshanam. तो अब प्रभुपाद बहुत ही एक मेलो में लिखते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने की विधि क्या है.
तो ये राधा रानी के माध्यम से संभव है। कैसे राधा रानी के माध्यम से संभव है? तो जो भी भगवान कृष्ण का भक्त है, अगर वो कुछ चीज ऑफर करता है तो वो राधा रानी को ऑफर करे। पहले जो कोई भी कृष्ण की सेवा करता है तो राधा रानी एक्चुअली प्रसन्न होती है कि चलो एक कृष्ण जी का एक भक्त आया, और उनको लगता है मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। वी विल सी वन श्लोका, ये कितना बड़ा भक्त है। तो वो कृष्ण के पास जाती है और कहती है यह मेरे से बेहतर भक्त है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले हमें श्रीमती राधा रानी की पूजा करनी चाहिए, और अगर कोई एक फूल अर्पण करना है तो आप बस इसे राधा रानी को सौंप दें, और आप राधा रानी को बोलें कि आप कृपया इस फूल को ले जाएं और अपने कृष्ण को इसका अर्पण करें। अपने कृष्ण का अर्थ है कि उनकी प्रॉपर्टी है। कृष्णा इज प्रॉपर्टी ऑफ राधा रानी, इसलिए बोला गया कि वो अपने कृष्ण को। तो इसलिए डायरेक्ट जाने में नुकसान हो सकता है। जैसे बच्चा है, अगर उसको पता है कि पिता गुस्सा है तो बच्चा जो है किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है। उसने कितना भी कुछ गड़बड़ किया हो, माँ कोई रास्ता निकाल ही लेती है कि पिता वापस नरम हो जावे। ऐसे ही यहाँ पे है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप एक फूल लीजिए या पत्र लीजिए और राधा रानी को दीजिए और बोलिए आप अपने कृष्ण को इसे अर्पित करें। तो राधा रानी कहते हैं ओ आप इसे कृष्ण के लिए लाए हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं इसको जो है आपके कृष्ण के लिए लाया हूं। जब वो कहते हैं कि आपके कृष्ण को, तो राधा रानी जाके बोलती है कि ये भक्त आया है, ये आपका भक्त है, आप इसका समर्पण स्वीकार करिए। और क्योंकि कृष्ण जो है वो स्वाधीन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उनको राधा रानी की बात माननी ही पड़ती है। इसीलिए पूरे वृंदावन में राधे राधे होता रहता है। रिक्शे वाला कभी कभी कृष्ण कृष्ण नहीं चिल्लाता है, उनको मालूम है राधे राधे बोला तो कृष्ण अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। ये खासियत है। अब देखिए बहुत ही एक मार्मिक, अभी हम कह रहे थे ना कहाँ कहाँ पे इनकी चर्चा है, किन ग्रंथों में है। एक बहुत ही मार्मिक एक कथा आती है गर्ग संहिता में, छठे स्कंद के पहले वॉल्यूम के 17 चैप्टर में। तो कहते हैं कि एक, वैसे तो कृष्ण जी वृंदावन कभी छोड़ के ना गए थे, ना गए हैं, ना जाएंगे, क्योंकि गोलोक वृंदावन का ही वो एक हिस्सा यहाँ पे लाया गया। और राधा रानी ने बोला कि अगर मुझे लेके, मेरे को वहाँ चलना भी है और अगर मुझे लेके चलना है तो जो मुझे यहाँ सुविधाएं प्राप्त है वो वहाँ भी होनी चाहिए। तो कृष्ण जी ने कहा जैसे, उन्होंने कहा जैसे यमुना महारानी। तो यमुना महारानी वहाँ से उतर के आई, उनके लिए सारी चीज़ें जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ पे मुहैया कराई गई। लेकिन कहते हैं कि 100 साल का एक कर्ज था कि आप लोग अलग रहेंगे। उस 100 साल होने के बाद में राधा और कृष्ण की मुलाकात जो है वो सिद्ध आश्रम में होती है। सिद्ध आश्रम को अगर आप रिसर्च करेंगे सिद्ध आश्रम क्या है, तो गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से ये एक कह सकते हैं कि पारमार्थिक स्पिरिचुअल जगह है, जहाँ पे राधा और कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण और उनकी सारी पत्नियों के साथ में उनका मिलना हुआ, ऐसा गर्ग संहिता में आता है। चलिए जी, तो ये नारद जी बता रहे हैं इस कथा को, तो हम अगले उस पर देखते हैं। प्लीज बोलिए। श्री कृष्णम अगतम वीक्ष्य पट्टराजनी समन्वितम तज्जय जयरवम चक्रुर्गोप्यो तिहर्षितः। तो राधा रानी, ये जो जगह है सिद्ध आश्रम, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्णम अगतम वीक्ष्य, वीक्ष्य यानी देखना, अगतम मतलब, आगतम मतलब आना। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण जी
उनकी सब पत्नियों के साथ में आ रहे हैं, तद जय जय रवन, तो उन्होंने जय जय बोला सब गोपियों ने। चक्र और गोपियोति हर्षिता, और सारे लोग वो हर्षित हो गए। तो कृष्ण की पत्नियों को देखकर सारी गोपियां खुश हो गई। इसमें बहुत बड़ा एक हमारे लिए लेसन है कि एक भक्त दूसरे भक्त को देख के ईर्ष्या नहीं करता है। वो कह सकती थी राधा रानी, या पत्नियां कह सकती थी, राधा रानी कह सकती थी मैं तो 108 राउंड्स करती हूँ रोज ये कौन है, बचपन तो मैंने गुजारा है, ये कौन है। पत्नियां कह सकती थी ये कौन है, हमारे तो हस्बैंड है, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, ये कौन है। लेकिन नहीं, कृष्ण पत्नियों को देखकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई, और पत्नियां भी गोपियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हाँ, तो ये नहीं, सम इफ यू रिसर्च प्रभु, इट इज मेंशन्ड दैट इट इज समवेयर इन द स्पिरिचुअल रेल्म, बट it could very well be in Vrindavan, because that also is spiritual realm. I don't have the eyes to see it, but it is there. कहीं भी हो सकता है। एक बार मुझे याद है किनका, मैं टाट वाले बाबा या किनका एक कहीं पढ़ रहा था, हाँ, तो वो एक पेड़ पे रहते थे टाट खाली पहन के, और वो पेड़ यमुना जी पे था। तो उनके जितने डिसाइपल्स थे उन्होंने बोला आप कहाँ ये बैठे रहते हैं, नीचे कई बार तो गंदा पानी बह रहा होता है, यमुना महारानी है वो तो रही नहीं जो पहले थी, आप ऐसा करिए हम आपको दूसरी जगह पे स्थान लेके चलते हैं। तो बहुत बुरी तरह से वो गुस्सा हो गए। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कल शाम को यहां आना शाम को वो सारे पहुंचे, तो उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख दिया। देखते ही उन्होंने क्या देखा, गोलोक वृंदावन की यमुना महारानी बह रही है, कछुए तैर रहे हैं, मछलियां तैर रही हैं, कृष्ण राधा रानी और गोपियां उसमें अटखेलियां कर रहे हैं। बोले अब मैं कहीं और जाऊं क्या। तो ये बात है। तो जब राधा रानी ने देखा कि कृष्ण भगवान आ गए, तब सहसा श्री हरिम राधा परिक्रम्य कृतांजलि पद्माभ्याम तु नेत्रभ्याम आनंदश्रूनि मुंचति। सहसा श्री हरिम राधा परिक्रायाम कृतांजलि, कृतांजलि करके क्या किया उन्होंने, परिक्रमा करी, कृष्ण जी की परिक्रमा करी। एंड पद्माभ्याम तु नेत्राभ्याम, जो कमल जैसे उनके नयन थे, आनंद आश्रु मुंचती, आनंद के आंसू मुंचती, गिरने लगे। और एक जगह मुंचती आता है, मुंच मुंच भाषिणी। जब पूतना ने स्तन पकड़े कृष्ण जी के, कृष्ण जी ने जब पूतना के स्तन पकड़े, तो जब उसके प्राण खींचे तो पूतना चिल्लाई मुंच मुंच भाषिणी, भैया छोड़ दे। इससे हमेशा याद रहता है मुंचती का मीनिंग क्या है। तो उन्होंने आंखें अपने आंसू गिरते रहे और भगवान कृष्ण की उन्होंने परिक्रमा करी। फिर उसके बाद में उनको राधा रानी ने देखिए क्या क्या ऑफर किया उनको। समयंतक ज्वेल्स उनको ऑफर किए, चिंतामणि ज्वेल्स उनको ऑफर किए, रूबीज ऑफर करे, कौस्तुभ मणि उनको ऑफर करी, और पारिजात के फूल उनको ऑफर किए। और फिर बोला कि अब मेरी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो गई। अब उन्होंने देखिए राधा रानी ने क्या बोला, ये राधा रानी कह रही हैं, मतलब नो वर्ड्स टू से मोर देन दिस, लेट्स रिपीट। आद्य में सफलो धर्मो हरे त्वय आगते सती ध्यानम सिद्धाश्रम स्नानम सफलीभूतम् अद्भुतम मयापि न कृता भक्तिः तव भक्ता सयानेह। प्रभु जोर से ट्रांसलेशन पढ़िए। ओ कृष्णा, now that you have come, my practice of religion is a success, and my bathing at Siddhashram is a wonderful success. Actually, I have no devotion to you who are served by your real devotees. मया पीना कृता भक्ते तव भक्त्या सयानेह।
बाकी भक्त आपके असली भक्त हैं, अपने पास तो कोई भक्ति है ही नहीं। ये राधा रानी कह रही है। क्या कह सकते हैं इसके आगे। फिर राधा रानी ने कहा, नेक्स्ट प्रभु। यस, the way it is translated, does it read in Hindi what it is translated? It looks very different in English versus Hindi. If you go back. हाँ, तो क्या होता है प्रभु? Actually, I have no devotion to you. क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मेरी devotion तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मया पीना कृता भक्त है। इंग्लिश थोड़ा सा different। अब प्रभु ये लैंग्वेज है। English is a funny language। अब जैसे हम लोग ये बैठ के कह रहे हैं, इसको इस्कॉन में क्लास बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। आपस में चर्चा कर रहे हैं आनंद लेने के लिए। क्लास थोड़ी है। क्लास का मतलब है टीचर होना। टीचर कहाँ है? कोई टीचर भागवता में है। हम तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन है ही नहीं कोई वर्ड इंग्लिश में बोधयंता परस्परम का। कहाँ है? तो इसलिए क्लास बोलना पड़ा। संस्कृत के जब वो विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर के एक्सप्लेनेशन तो एक वर्ड के 4-6 मीनिंग निकाल के ट्रांसलेशन करते हैं। वो इंग्लिश में तो कवर ही नहीं कर सकते। संस्कृत में कई बार प्रभु फर्स्ट लाइन का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो थर्ड में आ रहा होगा और सेकंड का फर्स्ट में आ रहा होगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए अब राधा रानी ने कहा कि आपने मेरे लिए इंद्र के अभिमान को तोड़ा, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अगला प्रभु, अब देखिए आए तो वहां पे कृष्ण जी सारी पत्नियों के साथ थे। उनका डिस्कशन किससे हो रहा है? खाली कृष्ण जी से। ये सब बातचीत जो हो रही है कृष्ण जी राधा रानी कृष्ण जी को बोल रही है। इतनी तन्मय है कि उन्होंने अभी तक पत्नियों को नोटिस ही नहीं करा है। अब देखिए चंद्रानन, चंद्रावली नाम की उनकी एक जो मंजरी है चंद्रानन, उसने क्या इन्फॉर्म किया? एवं वदंती सा राधा। जब ऐसे राधा रानी बात कर रही थी, तवरम चंद्रानन अज्ञनय, तो चंद्रानन ने कहा सा आदरेन हरेर पत्नीर वीक्ष्य तो गौरवम ददौ। हाँ, सा आदरेन, उन्होंने चंद्रानन ने बोला भाई इनकी वाइफ्स भी साथ में आई हुई हैं। तब देखते ही उन्होंने सा आदर, उनका सम्मान किया, सा आदर, और उनको पूरा सम्मान दे करके आदर पूर्वक उनको बैठाया। प्रभु आप जोर से रीड करेंगे। As Sri Radha was speaking these words, Chandranayana informed her of Queen's presence. Respectfully glancing at the Queens, Sri Radha offered them all respect. हाँ, श्री राधा कृपा कटाक्ष की। Respectfully glancing at the queens, that is kataksh, glance. That's what she did, and she offered her respects to all the queens. अब देखिए रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण, कालिंदी, मित्रविंदा, 16,000 रानियां अन्य रानियों से मिलकर रोहिणी श्री राधा की अध्यक्षता में प्रेम और आनंद से भरी अपनी बाहों में गले लगा लिया। लेसन, एक भक्त को दूसरे भक्त को प्यार करना चाहिए। कई बार हो सकता है मनमुटाव हो सकता है, नहीं जम सकता है, कोई बात नहीं। जैसे हमें कोई झेल रहा है, हमें भी झेल लेना चाहिए। हमें भी तो कोई झेल ही रहा है ना। हाँ प्लीज। जो सिक्योर फील करता है वो हमेशा दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है। मतलब बोथ आर नॉट इनसिक्योर विद ईच अदर। क्या बात है। इफ यू आर सिक्योर फीलिंग इन लाइफ तो आप ऐसा सबको सम्मान दोगे। फैंटास्टिक, आपने मैनेजमेंट लेसन बता दिया। ऑफिस में भी ऐसा ही है, बिल्कुल सही है ये। फैंटास्टिक, वेरी नाइस पॉइंट। ऑफिस में भी यही है, जिसको यह है कि ठीक है आई एम डूइंग माई जॉब एंड आई एम, भगवान मेरे, उनको डर नहीं है किसी चीज का, बाकी एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। क्या कर सकते हैं। अब राधा रानी ने कहा, कौन पढ़ेगा हिंदी? कमल प्रभु। श्री राधा ने कहा, जैसा कि एक चंद्रमा है लेकिन चकोरा पक्षी कई है, और जैसा कि एक सूर्य है लेकिन आंखें कई हैं, इसलिए श्री कृष्ण चंद्र की एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है, लेकिन हम भक्त हैं। हे मेरी बहनें,
अनेक अनेक हैं। हाँ, उन्होंने कहा कृष्ण जी जो है वो चंद्रमा की तरह है और आप और हम सब चकोर की तरह हैं। चकोर की एक खासियत होती है, क्या खासियत है जी? एनीबडी? यस यस, हाँ, वेरी क्लोज। रेन वाटर नहीं है, एक स्वाति नक्षत्र के टाइम पे एक स्पेशल बूंद गिरती है। तो एक चकोर गिरता हुआ जा रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, बहुत दिन से प्यासा था, तो बारिश हुई तो उसने मुंह बंद कर लिया। तो दूसरे पक्षियों ने पूछा, भाई मुंह क्यों बंद कर लिया, इतने दिन से पिया कुछ नहीं है, निर्जला चल रही है तुम्हारी। बोले नहीं, स्वाति नक्षत्र का नहीं है, जब वो होगा तभी पिएंगे। तो ऐसे, तो इस तरीके से ये हैं। हाँ जी, नारद जी, he said, please repeat, राधा वाक्यम तदा श्रुत्वा रुक्मिणी भीष्म नंदिनी सप्तनी सहिता प्रह रदम कमल लोचनम। कौन पढ़ेगा जी? जोर से। Daughter Rukmani, who stood in the company of her co-wives, spoke to lotus-eyed Shri Radha. अब रुक्मणी माता ने क्या कहा? चलिए जी, प्रभु आप पढ़ेंगे हिंदी, ये नेक्स्ट हिंदी ऊपर। श्री नारद ने कहा, श्री राधा की बातें सुनने के बाद भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, जो अपनी सह पत्नियों की संगति में खड़ी थी, ने कमल नेत्र श्री राधा से कहा। नीचे वाला भी पढ़िए। श्री रुक्मणी said, O Radha, O daughter of King Vishnubhadra, you are fortunate. वृषभानु। You are fortunate. Krishna is conquered by your love. He is under your control. The three words glorify Krishna, but Krishna glorifies you. Please repeat. ध्यानसी राधे वृषभानु पुत्री त्वद भक्ति भावेन वशीकृतो अयम। तुमने उसको वश में कर रखा है, ये बात है। बाकी सबको कृष्ण जी ने वश में किया हुआ है, राधा रानी ने कृष्ण जी को वश में किया हुआ है। तो हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जरा पूछना चाहिए कृष्ण जी से, रस का बात है। वदती अलम, पर दोनों भूलना नहीं चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कृष्ण जी ही राधा रानी बने हुए हैं, सो नो कॉन्ट्रडिक्शंस। वदती अलम यस्य कथम त्रिलोकी। हाँ, त्रिलोकी में आपका नाम गुणगान होता रहता है, स एव वर्तम वदती त्वदीयम। लेकिन आप जो है वो राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। अच्छा जी, अब रुक्मणी माता ने कहा चलिए ऐसा है, अब आप पालकी पे बैठिए राधा रानी और हमारे साथ चलिए। और उन्होंने बोला कि आपका महान प्रेम के बारे में सुना है, लेकिन हमें अब आश्चर्य नहीं है क्योंकि हम इसे सीधा देख सकते हैं। कृपया हमारी पालकी में आइए, हम आपको सम्मान देने और आपको अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। तो हाउ टू डिवोटीज आर इंटरेक्टिंग। अब देखिए जी, आप पढ़ेंगे माता जी। तब रुक्मणी ने श्री राधा को सर्वतोभद्र नाम की स्वर्ण पालकी पर सहज किया, जो कमल के फूलों की माला और फूलों की सजावट से सुगंधित थी और जिसमें नरम फूलों से सुशोभित बहुत नरम कुशन थे। उस रात रुक्मणी ने अपनी सह पत्नियों के साथ श्री राधा की पूजा की। तो उनको पालकी में बैठाया, फूल उसमें नरम नरम थे, गद्दे थे नरम नरम, और उनको वो लेके चली। अब देखिए, रुक्मणी एंड हर कोवाइज वर्शिप दी 100 ग्रुप्स ऑफ गोपीज वन बाय वन। एक एक गोपी की पूजा अर्चना की उन्होंने। एंड आफ्टर टॉकिंग ऑफ मेनी थिंग्स, लॉर्ड कृष्णा's क्वीन सॉ दैट ईच गोपी कंफर्टेबली वेंट टू स्लीप। तब तक वेट किया जब तक एक एक गोपी आनंद से सो नहीं गई। और उसके बाद में देन द क्वींस हैप्पीली रिटर्न टू देयर ओन पैलेंक्विन्स। उसके बाद में वो पालकी से वापस अपने घर आ गई। अब देखिए आप लीला भगवान की।
वहाँ जाके क्या देखते हैं, बहुत रात हो गई थी तो सोने का टाइम हो चुका था कृष्ण जी का, पर कृष्ण जी जाग रहे थे अभी भी। तो रुक्मणी माता ने बोला, भाई इतनी रात हो गई, गोपियां भी सो गई हैं, आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? तो कृष्ण जी ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली कन्या, राधा आपके सम्मान और स्वागत से बहुत ही प्रसन्न हुई है। अब कृष्ण जी ने कहा, प्लीज रिपीट, सचा नित्यम ही पिबती। राधा रानी जो है वो रोज पिबती पीती है। शयन अदौपयः शुभम, रात को सोने के पहले वो दूध पीती है। पयः पनम तु न कृतम, लेकिन आपने वो दूध उनको ऑफर नहीं किया। आप सोचिए, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को जो पूरा टाइम लगा के आ रही है गोपियों पे सुबह से रात तक, और घर आके उसको ये सुनना पड़े कि तुमने बाकी सब किया, उसको दूध नहीं दिया। क्या होगा हाल घर में? महाभारत हो जाएगी भागवतम की जगह, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि तुमने ये नहीं किया। अदौ सुबरु तया किला, तो उन्होंने बोला सोने के पहले राधा रानी हमेशा दूध पीती हैं, फिर भी आपने दूध की व्यवस्था उनके लिए नहीं करी। रात को बोल रहे हैं वो। अब उस कारण से राधा रानी को नींद नहीं आई है, और क्योंकि वो नहीं सो पा रही है तो मैं नहीं सो पा रहा हूं। अब बताइए रुक्मणी माता की हालत, तो ये क्या है ये सब? पर क्या उन्होंने बुरा माना? क्योंकि उनके पास भी वही वाली माता जी वाली बात, उनके पास भी 100% कृष्ण है, राधा रानी के पास भी 100% कृष्ण है। प्रॉब्लम वहां होती है जहां मटेरियल चीजें स्केर्सिटी में होती हैं। रुपया, धन, दौलत, मान सम्मान, गोल्ड, डायमंड्स, हर चीज लिमिटेड है, इसलिए उनको लेके लड़ाई हो रही है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है, हर जने को भगवान पूरे पूरे मिलते हैं 100%। तो इसलिए उनको खराब नहीं लगा। आप देखिए अभी आगे आने वाले उसमें देखिए ना, श्री नारद उवाच इति श्रुत्वा परम भस्मी, इति श्रुत्वा मतलब जब उन्होंने सुना, परम भैष्मी, भैष्मी मतलब भीष्मक डॉटर रुक्मणी जी, सप्तनी भी है समन्विता, अकेले नहीं गई वो। अब अगर अकेले जाएंगी तो राधा रानी को लगेगा ये ख्याल ज्यादा रखती है, आएगा नहीं, पर फिर भी। लेकिन रुक्मणी माता बाकी सबको लेके गई कि सब बराबर सेवा करेंगे, ये नहीं है कि मेरे पास सेवा आई है तो खाली मैं ही कर लूं। इसलिए उन्होंने बाकी पत्नियों को भी साथ में लिया। नित्वा दुग्धम तत्समीपम, और उन्होंने दूध लिया और सारी पत्नियों के साथ वापस जहां राधा रानी थी वहां गई। प्रय उपरम आदरत, बहुत ही आदर के साथ वो एक पात्र में गरम दूध लेकर के गई, और उन्होंने उनको वो जो गरम गरम दूध था, स्वर्ण का जो वो पात्र था, उसमें शक्कर डाल के अच्छे से उनको खीर जैसी उनको बना के उन्होंने दी। अब रुक्मणी जी ने देने के बाद में वापस आई रुक्मणी जी, और उन्होंने बताया क्या? कृष्ण जी को प्लीज रिपीट। अगत्या कृष्ण समीप्यम, अगत्या मीन्स आ गई, कृष्णा समीपम, वेरी नाइस। वदंती, वदंती का क्या मतलब है जी? बोली। स्वकृतम शुभा, स्वकृतम खुद का कार्य कृष्ण जी को उन्होंने बताया वो क्या करके आ रही हैं। भेजे श्री रुक्मणी साक्षात श्री कृष्ण पाद पंकजम, और फिर लक्ष्मी जी है तो फिर वो भगवान के चरण चापने लग गई, अपना बता के कि भाई मैं दूध दे आई हूं। अब जब वो चाप रही थी पैर, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पैर में फफोले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या है, आपके पैर में फफोले कहां से आ गए? तो कृष्ण जी ने कहा कि राधा जो है वो उबलता हुआ दूध नहीं पीती है।
वो सिर्फ निवाया दूध पीती है। अब आपने उनको सुवर्ण पात्र में उबलता हुआ दूध दे दिया, इससे उनके हृदय में फफोले पड़ गए और उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, तो इस वजह से मेरे चरण में भी फफोले पड़ गए। तो रुक्मणी जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया, महाराज आपके आपस की जो है वो अपने समझ के बाहर है। हाँ भैया बैठ जाओ बच्चा लोग, 10 मिनट में, बस 5 मिनट में फिनिश ही होने वाला है। आप लोग आगे आ सकते हो, सीट ले सकते हो। ओके ओके जी। तो जब ये सुना उन्होंने, तब रुक्मणी माता और बाकी उनकी जो पत्नियां थीं, आश्चर्य से, उनके चेहरे पे आश्चर्य और प्रसन्नता भी थी, और आश्चर्य बहुत था कि ये कैसा अद्भुत प्रेम है कि बेसिकली हालांकि 2 देह हैं पर है एक ही। ये तभी हो सकता है, जो कि वाकई में यथार्थ है दोनों देह एक, 2 एक, लेकिन 1 से 2 बने हुए, और वापस 1 बने चैतन्य महाप्रभु के समय पे। ओके अच्छा जी। अब क्या समय हो गया भैया? ओके, आज बिल्कुल समय पे चल रहे हैं, शायद समय पे शुरू कर लिया इसलिए हो गया। इसका क्या सबूत है कि राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण सांसारिक प्रेम नहीं है। देखिए, जब भी हम लोग भगवत गीता, भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र, संकीर्तन, भगवान कृष्ण, राम, इनसे रिलेटेड कोई भी कार्य यदि करते हैं, कृष्ण जी से कनेक्ट होके कोई भी कार्य करते हैं, क्या उस वक्त किसी को भी काम वेदना सताती है? आप अपने से स्वयं पूछें। बिल्कुल। अगर काम वेदना सता भी रही है और अगर भगवान कृष्ण का, राधा रानी का चिंतन करने लगते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उल्टा होता है, विरक्ति होने लग जाती है। तो जिनके बारे में सुनने मात्र से अलग भाव उत्पन्न होने लगता है, वो स्वयं कैसे सांसारिक प्रेम में पड़ सकते हैं, ये इसका प्रूफ है। एक बार क्या हुआ, गोपाल तपानी उपनिषद में आता है ये एक्चुअली, कि एक बार रास डांस के बाद में राधा रानी और गोपीज जो थी, उन्होंने कहा हम ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा भाई मेरे भी गुरु जी हैं दुर्वासा जी। बोले अच्छा वो आए हुए हैं, कहाँ पे हैं? बोले यमुना के पल्ली पार। बोले तो बड़ा अच्छा मौका है, उनको जा करके थोड़ा कुछ प्रसाद खिला के आते हैं, वहीं ब्राह्मण भोज भी हो जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है जाओ। तो उन्होंने कहा हम इतनी सारी गोपियां हैं, इतनी तो नावें भी नहीं है वहाँ, हम जाएंगे कैसे? तो कृष्ण जी ने कहा कि यमुना महारानी से बोलना कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है संपूर्ण, तो हमें रास्ता दे दो। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप तो हमारे साथ जब नृत्य करते हैं हमारे को स्पर्श भी करते हैं, आलिंगन भी करते हैं, और आप कह रहे हैं आप बाल ब्रह्मचारी है। बोले तुम बोल के देखना। तो वो गई, उन्होंने बोला भाई अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी तो आप रास्ता दीजिए यमुना महारानी। तो यमुना महारानी 2 में हिस्से में हो गई, चली गई गोपियां। वहां पे दुर्वासा ऋषि को खिलाया, प्रसाद पवाया उनको अच्छे से। दुर्वासा जी से कहने लगी अब हमें वापस जाना है, कैसे जाएंगे? दुर्वासा ने कहा आए कैसे थे? बोले जी ऐसे ऐसे आए थे। उन्होंने बोला अगर बाल ब्रह्मचारी है तो बोले अच्छा वैसा करना, यमुना जी में जाओ और बोलना कि अगर दुर्वासा का मीनिंग क्या है जी? दूर्व खाने वाले, खाली घास खाते थे वो। आप सोचिए घास में कितनी शक्ति होती, इतना एंगर। और ये नहीं समझना चाहिए कि वेजिटेरियन गाय बन जाते हैं खा के। दुर्वासा ऋषि का प्रमाण है हमारे पास। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करना, यमुना नदी में जाना और वहां बोलना कि अगर दुर्वासा ने सिर्फ घास जैसा ही खाया है और किसी चीज का स्वाद नहीं लिया है तो आप प्लीज 2 में हो जाओ। तो वो गई, उन्होंने कहा बोले महाराज हमें वापस जाना है।
बोले अगर दुर्वासा जी ने खुद कुछ नहीं खाया है, इतनी सारी कचौड़ी पूड़ी सब जो खिला के हमारे हैं, तो आप तो 2 में हो गई। वो तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो कृष्ण जी के पास गई, बोले जी बाकी सब तो ठीक है, ये कैसे हो सकता है? बोले देखो ऐसा है, ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातनहा, तो मैं तुम लोगों के साथ जो रास कर रहा हूं वो अपने ही अंश के साथ कर रहा हूं, इस शरीर के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा शरीर से लेना देना कुछ नहीं है, आप सब मेरे अंश हो। और बोले महाराज वो गीता में एक आपको याद होगा एक श्लोक आता है, गुणानुगुण वर्तन्ते। उन्होंने कहा ये आता है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही सिद्ध पुरुष है। उन्होंने कहा दुर्वासा जी इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने खाया लेकिन उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ भगवान के अंश ने खाया, मैं करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, इसलिए वो 2 में फट गया। तो ये है, तो इससे प्रमाण होता है कि उनका भौतिक प्रेम नहीं है, कहने का अर्थ ये है। अब समय है तो हम एक आध और ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल में आई थिंक लेट्स डू 27 ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की प्रभु आगे लगा दिए। श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव